Okay, so a very good morning to all of you and welcome back. We are in the midweek situation, and just to inform you that, as you know already, that next week there will be a CPT, so there will be a test. Let me just give you in 2 minutes brief about the test. First about the syllabus, of course. Okay. Good morning messages coming from Aditya, Arav, Priyank. Okay. As I was saying that, let me give you a quick overview of the test. The test will be held morning, and the total duration of the test will be around 1.5 hours. Okay, so it will be like 7:30 to 9, and then at 9 you have to submit the test. Right. So that's the pro forma. Good morning, Saurav. And what would be the syllabus and the pattern of the test? Well, here goes the detailed description. CPT. Test pattern will be, or other test syllabus will be units, dimensions, then you have errors, vectors, and math tools. That's the syllabus, first of all. Okay, and that's the syllabus. And as far as the हार्दिक said कि क्या कोई काइनेमेटिक्स नहीं है. एक्चुअली काइनेमेटिक्स तो खैर जैसे हमने 1D खत्म कर लिया है, एक दो बैचेस में अभी 1D चल रहा है, लाइक टुवर्ड्स द एंड. तो इसलिए उन्होंने मना किया. मैंने चलो ठीक है, लेट देयर बी अ सिंगल सिलेबस है, ठीक है ना. तो नेक्स्ट वाले सीपीटी में 1D 2D और वो सभी इकट्ठे रखें, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाट द प्लान इज. तो चलो एनीवे, so that is the syllabus, and CPT pattern would be somewhat like this. The pattern would be somewhat like this. 8 question, single choice. Okay. Single choice question type 8. More than one type, that is multiple choice question type 5. Comprehension passage 3 questions. Okay. Integer type 4 questions. And descriptive type, that is subjective type. Okay. So like subjective type questions are also there. 4 questions. Let me explain to you quickly the pattern in which things will be done. This becomes a total 80 marks. Okay. And this is 10 marks. But there is an interesting way in which total marks will be given. And that is, out of 80 marks, suppose you have got a score of S1. And out of this 10, let's say you get a score of S2. So your total score or total marks will be S1 by 2 plus S2. Now let me give an example. Suppose out of 80, okay, SCQ means single choice question, means only one of the answers is correct. MCQ means more than one type of question. So like multiple choice question. Okay. This is comprehension passage and this is the integer type. Okay. Arav has said about the marking scheme. Marking scheme मैं समझा रहा हूँ बेटे. तो marking scheme ये है कि 80 में से जो मिलेगा उसको आधा कर देंगे और 10 में से जो मिलेगा वो as it is. That is a example मैं दे रहा हूँ. Suppose somebody scores 60 out of this, and let's say somebody scores 70 out of this. 7 out of this. In that case, his score will be 60 by 2, that is 30, and then 7. So his marks will be equal to 60 by 2 plus 7, that is 37 out of 50. So that's how the scoring is going to be done. Okay. Hardik has asked, is there negative marking? Yes, there is negative marking in this section, but obviously in subjective there is no negative marking. Either you get 0 or you get partial marking, -1 -2 full marks.
सर नेगेटिव मार्किंग -1 और -2। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा +3 एंड -1, ठीक है, या शायद +4 या -1 ऐसी कुछ, इन दोनों में से। मल्टी करेक्ट में -2 तो नहीं है? नहीं, मल्टी करेक्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें है मल्टीपल। वैसे इतना भी ना भी पता करो, एक मिनट, ये सब चीजें अभी ना भी पता करो तो चलेगा, क्योंकि जो एग्जाम होगा ना उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन जाए कि कौन से क्वेश्चन में क्या मार्किंग। पार्शियल मार्किंग होगी? पार्शियल मार्किंग इज ओनली इन दिस, नॉट इन दिस। इट इज आइदर +4 और -1 या +3 -1, जो भी स्कीम। मल्टीपल करेक्ट में नहीं है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जिसमें मोर देन वन टाइप का होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग, तो बट यू विल गेट मार्क्स ओनली व्हेन ऑल द ऑप्शंस आर सिलेक्टेड करेक्ट, कोई पार्शियल उसमें नहीं, ठीक है ना, दैट्स ऑल। सर इंटीजर में भी है नेगेटिव? हाँ जी, सब में नेगेटिव, सिर्फ इसमें नेगेटिव नहीं है और इसमें नेगेटिव, सब्जेक्टिव में तो नेगेटिव होगा भी नहीं। तो फर्क क्या होता है ना, इसमें तो सिर्फ ऑप्शन चॉइस बताना है, या इंटीजर टाइप में इंटीजर नंबर 14, 17, 20 जो भी है, लेकिन सब्जेक्टिव वाले में तुमको पूरा लिख के बताना, एक्सप्लेन भी करना है स्टेप्स कैसे क्यों है, सो देयर कुड बी पार्शियल, देयर वुड बी पार्शियल मार्किंग, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट द पेपर पैटर्न एंड पेपर, ठीक है। सो विल स्टार्ट ऑफ विद फिजिक्स सीपीटी ऑन सर एमसीक्यू में होंगे पार्शियल मार्किंग? नहीं बेटे, मैंने मना किया ना, एमसीक्यू में नो नेगेटिव मार्किंग, नो पार्शियल मार्किंग, मार्किंग स्कीम तो जो होगा वो उसी हिसाब से मार्क्स, ठीक है ना। शायद +4 या -1 होगा, तो वो देख लेंगे। ऐसा नहीं, ये सब चीजें ना भी पता करो तो चलेगा, तो वो पूरे इंस्ट्रक्शंस रहेगा, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। हो सकता है कि एक आध मैंने, जैसे मान लो इसमें मैं डाउटफुल हूँ, तो इसलिए अभी डिटेल ना भी डिस्कस करें तो चलेगा, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर मार्किंग स्कीम एटसेट्रा। Excuse me, sir. हाँ जी बेटे। Sir, what would be the level of the CPT? लेवल तो वही जैसे हम लोग क्लास में भी करते हैं, प्लस जेई में जैसे आता है उसी टाइप, ठीक है ना। Sir, then doing HCV would be sufficient, or do we have to practice more? देखो, HCV मैंने पहले बोला है that HCV should be the first book, and then after that any other book which could be DC Pandey, it could be BM Sharma, it could be, that's what is generally suggested, ठीक है ना। But even if you've done HCV completely 100%, तो देखना you will be okay with the paper, ठीक है। चलो, तो लेट्स फाइनली मेक ए स्टार्ट टू द डे। हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ सर्कुलर मोशन के ऊपर काफी डिस्कशन किए हैं, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट we already talked about different aspects of it. We have talked about pure rolling motion कैसे होता है, and so on so forth. We have done justice to that. और हमने ये भी देखा है कि स्लिपिंग कब होता है, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कब होता है ना, और स्लिपिंग अगर हो रहा है तो किस तरीके से होता है, एटसेट्रा। तो उसके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन भी किया है। I think that would be more or less good enough discussion as far as सर्कुलर मोशन इज कंसर्न, ठीक है ना। तो बस मैं एक बार फिर से बता देना चाहूंगा इज दैट सर्कुलर मोशन में जब बॉडी चल रहा है और अगर मान लो आगे पीछे भी हो रहा है, एक्सेलेरेशन भी हो रहा है, सब कुछ, तो इन दैट केस एक्सेलेरेशन निकालने के लिए 3 टर्म्स ऐड करने पड़ते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर, एक्सेलेरेशन रेडियल एंड एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल। और वेलोसिटी के लिए क्या होता है, 2 टर्म्स ऐड करना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर एंड टेंजेंशियल वेक्टर व्हिच इज ओमेगा, एंड सो ऑन। So this is what we have learned as far as circular motion is concerned, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। We want to talk about today about प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, है ना। तो लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट थ्रोन इन ग्रेविटी। So like if I throw this like this, so it will become a projectile. ऐसे थ्रो कर दिया तो यूं ऐसे कर्व करके फिर नीचे आता है, तो दैट इज व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम फंडामेंटली देखें तो क्या है, इट इज नथिंग बट मोशन अंडर ग्रेविटी। पर ठीक है, एक केस आता है, जैसे मान लो अगर मैं इसको सिर्फ ड्रॉप कर तो देन इट्स अ सिंपल स्ट्रेट लाइन,
ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही पार्ट है, ऐसे बात नहीं है, but then we generally avoid talking about this situation because it's like too simple. We are able to describe everything in just one coordinate, that is the y coordinate, है ना, यानी हाइट वगैरह या वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट वगैरह. लेकिन अगर मान लो तुम इसको एंगल पे फेंकते हो, in that case it travels along x axis also and it travels along y axis also, isn't it? So then let's see what happens. So first of all, अगर मान लो ये x y axis है और लेट अस से मैंने एक पत्थर को u स्पीड से ऐसे फेंक दिया और थीटा एंगल, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखो, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हम पता है कैसे स्टडी करेंगे, वेक्टर फॉर्म में स्टडी करेंगे. मतलब क्या, तो याद करके देखो, हमारे पास इक्वेशंस है v is equal to u plus kt. हमारे पास इक्वेशन ये भी है s is equal to ut plus half at square. इन्हीं के वेक्टर फॉर्म कैसे होगा? v वेक्टर is equal to u वेक्टर plus a वेक्टर into t. s वेक्टर is equal to u वेक्टर into t plus half a वेक्टर into t square. ये हो गया उन्हीं इक्वेशंस के वेक्टर फॉर्म, ठीक है. तो इसको कैसे करेंगे, है ना? तो जैसे इस केस में अगर मैं देखता हूं तो व्हाट वुड बी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, है ना? तो ये जो u है, मैं इसको ना ऐसे थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं लिख दूंगा v0, ठीक है. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी u अल्फाबेट यहाँ पे यूज किया, तो ये भी u है और वहां का इक्वेशन में भी u है, तो थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या लिखा है, देखो, वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, displacement after any time t is equal to what? v0, initial velocity, plus acceleration vector into time t. Displacement after time t is equal to initial velocity into time t plus half a vector into t square. तो ये हो गया तुम्हारे इक्वेशंस जो कि फॉलो होंगे, ठीक है. और अगर इस केस में देखोगे तो वो कैसे होगा, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखता हूं, ठीक है ना, तो क्या होगा इसके कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? ठीक है. तो instead of me giving all the answers, I mean, why not me pick up somebody? Okay, can we have Aryan Tomar on here, bete? Aryan? Yes, sir. Okay, can you describe me what should be the way I should write v0 vector? Sir, it should be u cos theta I cap and u cos sin theta j cap. Okay, that's right, and it's pretty simple. In fact, already Arav ने भी यही आंसर दे दिया, that is u cos theta and u sin theta through messages also. I think it's a pretty simple job. चलो, ठीक है, well done. Let me go ahead now with somebody else maybe. Mukund, can I have you on air, bete? Mukund? Yes, sir. Okay, I'm asking you what should I write as the a vector? A vector, sir. Sir, a cos theta I cap. चलो, ये a cos theta ये जो बता रही है, थीटा क्या है और ये a क्या है? थीटा के a वाला थीटा है Yes, sir. और a क्या है? Acceleration. नहीं, वो है कितना? ये देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या, कि मैंने एक पत्थर को ऐसे फेंक दिया, तो isn't it traveling under the influence of gravity? Yes, sir. Yes, sir. Then what should I write? A as G. G. Is it upwards? Yes, sir. Acceleration upwards है? No, sir, downward. Downward, तो क्या लिखना चाहिए फिर? Sir, minus G. Sir, अब हुआ ना? चलो, now you are right. चलो, ठीक है, यानी acceleration vector के क्या लिखना चाहिए? The minus G.
ठीक है, ओके बेटा. In fact, I've already got some more answers. I mean, Kritika and Aditya, Hardik, Aditya, Vaishnavi, Priyank, Arav. ठीक है, ऑल करेक्ट. तो यानी क्या लिखना चाहिए, ए की जगह इक्वल टू माइनस जी जे का. ठीक है, अब मैं पता क्या करूंगा, अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस 18. तो यानी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू u तो है ही है प्लस a इंटू टी. तो यानी ये हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप. ये हो गया u प्लस a दैट इज माइनस जी जे कैप इंटू टी. यानी जे कैप वाले अलग कर लूं तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस यानी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा minus gt j cap. It's just not sufficient to write down a vector equation या vector based equation. We also need to understand the meaning of this equation. देखो इस equation का meaning क्या हो गया, यानी we know this is velocity vector initial, this is the acceleration, and this is the velocity vector after time t. Actually हो क्या रहा है कि देखो, वैसे तो मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे करते 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 देखो इसका एंगल बदलता रहता है. So the angle of the projectile motion goes on changing. तो अगर मैं देखता हूँ किसी और वक्त पे, जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया तो ये चला गया ऐसे करके जो भी है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सी द एंगल हैज चेंज्ड. देखो पहले ऐसे था, है ना, ये एंगल था इनिशियली, और अब देखो एंगल बदल चुका है. तो ऑब्वियसली फिर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उस समय टी वेक्टर वीटी वेक्टर उसके कुछ ना कुछ एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे. ये देखो ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट. सो दिस इज बेसिकली दिस एंड दिस इज बेसिकली दिस. एक चीज और देखो, ये u sin थीटा था इनिशियली, दिस u sin थीटा, सो लाइक दिस इज u cos थीटा and therefore this is u sin theta. सिंपल. ये u cos थीटा देखो उतना ही रहेगा, क्यों, देखो ना इनिशियली में u cos थीटा है तो थोड़ी देर बाद भी देखो u cos थीटा. Now what is the logic? Logic is that acceleration is existing only in the vertical direction. Horizontally there is no acceleration. इसलिए horizontal में कोई velocity यानी सॉरी स्पीड नहीं चेंज होगा. तो horizontal direction में speed will not change. ठीक है ना. So therefore in this case what will happen? The horizontal velocity remains the same. The vertical has changed. So therefore we know that horizontal component of velocity is constant. क्यों? क्योंकि horizontal में कोई acceleration ही नहीं है. हाँ, vertical direction में acceleration है, जिसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअसली बदलता जा रहा है. ये देख रहे हो तुम्हारे सामने ही है u sin थीटा माइनस gt. इट इज गोइंग ऑन चेंज. चलो, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो ये u cos थीटा हो गया और ये हो गया u sin थीटा माइनस gt. ठीक है ना, u sin थीटा माइनस gt. देख लो. ओके, चलो. सो दैट वाज अबाउट योर वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का बेसिक इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना. तो ये u हो गया इंटू t प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर. इसको पूरा लिखना है तो लेट्स राइट इट डाउन. तो डिस्प्लेसमेंट तो यानी बेसिकली ये क्या है ना, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर time t, and this is the y component of velocity after time. ठीक है, ये x component of velocity after time t, ये हो गया y component of velocity after time. सिंपल.
अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे जैसे हमने वेलोसिटी निकाला आफ्टर टाइम t, ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, क्या आएगा, है ना? लेट्स सी दैट। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू v0 into t। v0 तो ये है, इसको into t करेंगे, यानी u cos theta I cap plus u sin theta j cap into t plus r a यानी माइनस जी जे cap। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने सिर्फ इस वेक्टर इक्वेशन में पुट कर दिया u t यानी v0 t plus half a t square। I'll just put it. And now let's collect the terms I separate, j separate. What will happen? Therefore, displacement after time t is equal to u cos theta into t I cap plus space. So displacement after time t ठीक है, u cos theta into t I cap plus u sin theta into t j cap minus half gt square वाला j cap. I put it exactly in the format of the equation, okay, as per the initial velocity and the acceleration data. Nothing very complicated. अब ये क्या है और ये क्या है, ठीक है ना? So let me ask this to somebody. Pratham Sharma, can I have you on here, bete? Pratham Sharma, are you able to hear, bete? Yes, sir. Yeah. Can you now tell me, Pratham, bete, ki what is this actually representing? The displacement in x component. Okay. Can you have another way of describing this? What you are saying is, first of all, right. Can you describe this in a little different way? I mean, The range. Huh? Range. नहीं, range तो इतना जल्दी नहीं. Range is not this thing. I mean, और कुछ? चलो ठीक है. Let me throw it open to everybody. Is that what he was just saying was कि ये हो गया displacement along x-axis. I am 100% agreeable to that. In terms of coordinates, can you tell me what is this representing? So I'm like giving a hint. In terms of coordinate, what is this representing? यथार्थ सेट की ये फाइनल पोजीशन है, आदित्य सेट की डिस्प्लेसमेंट है, देवदत्त सेट की ये एक्स कंपोनेंट है, शौर्य सेज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस. See, all said and done, fine. All said and done, fine. चलो ठीक है. Let me give you the answer. Maybe the question is not so as clear as I am thinking. I mean, तो ये जो है ना, this is the x coordinate of particle at time. This is the x coordinate of particle at time. यानी समझो, ये है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट. मान लो का पार्टिकल यहाँ पे है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से. तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दो चीजें हैं. दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो छोटा लिखना पड़ रहा है कि जगह कम है. तो दिस इज बेसिकली द एरिया. काम करो, इसको u cos थीटा यहाँ लिखो. Then I will get some space. ठीक है. So this is the x coordinate of the particle at this moment. तो ये जो दो चीजें दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या है? This is the x coordinate of the particle at any time t, and this is the y coordinate of the particle at any time t. So this is the y coordinate of particle
at ठीक है, देख लो Aditya has given कि it is the horizontal distance, that is x distance. चलो ठीक है, that language is also okay. वही x coordinate ही हो गया finally. लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना is that हम लोग ये जो equation लिख रहे हैं ना, this is when the particle starts at origin. और by default हम लोग ये हमेशा मान के चलेंगे कि particle यानी projectile जहां से भी start किया है उसी को origin आप लेते हैं. ठीक है, तो particle जहां से भी start किया उसी को जनरली हम लोग origin लेना पसंद करते हैं. So therefore origin is where the particle starts. चाहे पार्टिकल छत से फेंको, पार्टिकल चाहे हवा जहाज से फेंको, पार्टिकल चाहे जमीन से फेंको, या पार्टिकल किसी गड्ढे के अंदर से फेंको, जहां से फेंकोगे उसी को ओरिजिन लेंगे. और ऐसे अगर करेंगे in that case all these equations will be for that. ठीक है, I hope that's clear. Aryan has now asked a question. Arav has asked, please don't drop the board. ठीक है, भी रुक. Aryan has asked, is it possible to find the distance traveled by the particle? Well, Aryan, distance traveled by the particle हर केस में निकालना मुश्किल होता है. कुछ कर्व्स के निकल जाते हैं. सर जैसे पैराबोला का एक टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है जो कर्व पाथ का है, तो उसमें इंटीग्रेशन लगेगा. हाँ जी, वो इंटीग्रेशन के बगैर नहीं निकले. ये कर्व पाथ है ना, स्ट्रेट में तो चलो प्लस माइनस करके आ जाता, और कर्व पाथ में क्या होगा, इंटीग्रेशन के बगैर नहीं होगा. ठीक है, चल एनीवे, आई एम जस्ट मूविंग माय सेल्फ अ लिटिल बिट असाइड. अगर किसी को कुछ नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ चीजें मिटाना नहीं. सर डिस्प्लेसमेंट तो आसानी से आ सकता है ना. हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो आसानी से आ सकता है. नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो आसान है. डिस्प्लेसमेंट का तो इक्वेशन ही है हमारे, यही डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. व्हाट यू आर आस्किंग, क्या हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं? आंसर इज दैट डिस्टेंस इस बार दिक्कत नहीं, कर्व है. तो डिस्टेंस कर्व के केस में इतना आसानी से नहीं निकलता. ठीक है ना. सो सबसे पहले ds इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, वो सब करके निकालना पड़ता है. 1 प्लस डिवाइड x का होल स्क्वायर का अंडर रूट करके इंटीग्रेशन. दिस लिटिल लॉन्ग जॉब. हितांत has asked a question that is ये ग्राफ पोजीशन टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम? नहीं, ये जो ग्राफ है ना, ये इसके पाथ शो कर रहा है. मतलब क्या कि जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है ना, इसको वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, और हर मोमेंट पे प्रोजेक्टाइल जहां जहां है इसी वक्त, उस वक्त राधा उसके एक डॉट लगा देता. डॉट 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 इस तरीके से. तो उसको अगर ज्वाइन करोगे तो जो कर्व बनेगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट कर्व. ये चीज, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर ये प्रोजेक्टाइल को फेंका गया. तो प्रोजेक्टाइल ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं और फिर ऐसे. आई थिंक सिंपल. प्रियंक has said कि is it the trajectory? Yes, you are right. This is the trajectory of a projectile. ठीक है ना. चलो, आई थिंक लेट्स नाउ मूव ऑन. मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. Then we will go to some generalized conclusions. वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो आया था उसको मैं एक बार लिख देता हूं, इसको हम लोग यूज करेंगे कई बार. वेलोसिटी वेक्टर क्या आया है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया है ना? u cos थीटा into t i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप. ये दो चीजें हैं. ठीक है, चल एनीवे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. दैट इज, सपोज एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका है. सर वो st गलत नहीं लिखा आपने. u sin theta t minus half gt स्क्वायर होगा. हाँ,
वो मैंने ठीक। अच्छा ये हो गया डिस्प्ले वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली, और मान लो मैंने थ्रो किया है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। सिंपल है। Questions are as follows. Question number 1 is find angle of projectile motion after 3 seconds. Find out the velocity after 2 seconds and the displacement after 2 seconds. तो बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. Please quickly solve these two and then we'll go ahead. By the way, 53 degree वाला I hope you are all aware by now. फिर भी मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ. Okay. Arav has given an answer already for the first question. Priyank has probably given answer to the what? The second question, Priyank? Yes, sir. Okay. Check. Arav has also given answer to the second question, but थोड़ा सा अलग-अलग है. Pratham has given the answer to both the questions, पर शायद अलग-अलग आ रहा है आंसर. नहीं, पहले का तो आंसर सही है, सेम ही आ रहा है. Okay, actually, you know what, Pratham, because the question has been asked in vector terms, so give the answer in terms of I cap and J cap. Kritika, the same for you also, because you have given answer in different form. Shikhar has given answer, Priyank has given a different answer. सबके अलग-अलग आंसर आ रहे हैं. Acceleration. ठीक है. Niyant has also given, Aditya Bhatia, Priyank. शौर्य ने आंसर थोड़ा अलग दिए हैं. बोला बात है कि वेलोसिटी का तो खैर सेम ही आ रहा है कईयों का. डिस्प्लेसमेंट भी अब सेम आने लगा है. शौर्य एंड नियंत. आरव, तुम्हारे आंसर टोटली अलग है फॉर द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. Okay, let me add a third question also. And that is, find out the angle of elevation of projectile after 4 seconds. So now I have added a third question. Okay, Rose, Vaishnavi, everybody has now started giving answers. Vaishnavi ki answer
लगभग सबके जैसे ही है। रोज योर आंसर इज आल्सो, रोज तुम्हारे जे कैप में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट seems to be too large. Shaurya has given an answer now, tan inverse of 4/5 to the third question probably. Bhumija, Saurav, Arav, they have also now given answers. Answer अलग-अलग आ रहा है, 4/9 आ रहा है. Mukund, Shekhar has also given answer. Mukund, तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के जे कैप में कुछ गड़बड़ लग रहा है. और Kritika says कि answer of first angle remains same, I think. Okay, chalo, let me start answering the questions. First of all, if you look at velocity or rather the angle of projectile motion, ये कैसे कर? ना देखो projectile को throw ऐसे किया, तो कुछ angle होगा, और वो angle देखो बदलता जा रहा है. Are you seeing it? The angle is continuously changing. तो angle कहाँ से आएगा? तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर अगर x I cap plus y j cap होता है, तो इसका जो एंगल थीटा होता है वो क्या होता है? tan inverse of y by x. क्योंकि x I cap plus y j cap होता क्या? तो वो होता है s, है ना? तो this is x and this is y. ये थीटा हो गया तो tan inverse y by x. ठीक है? तो therefore theta is equal to tan inverse of y upon x. Very simple. इस केस में सबसे पहले काम करेंगे फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन आफ्टर 3 सेकंड्स. का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल का मोशन इनिशियली तो ऐसे स्टार्ट हुआ कितना 53 डिग्री. तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मैं बोलूंगा 53 डिग्री, बिकॉज़ दैट्स हाउ इट हैज बीन थ्रोन. लेकिन इनिशियल नहीं पूछा है, 2 सेकंड बाद पूछा है, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स का वेक्टर निकालना पड़ेगा. तो देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स. सर 3 होगा. नहीं 3 नहीं, 2. अच्छा सॉरी, हाँ 3. अच्छा क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया. ठीक, 3 सेकंड्स वाला था तो हाँ बेटे. वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड्स के बाद वाला निकालना था. नहीं, सिर्फ वेलोसिटी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर से आंसर. हाँ ठीक है, तो इज इक्वल टू, अच्छा v u cos थीटा, तो u cos थीटा क्या होगा? 75 into cos 53 3/5 I cap plus u sin theta, यानी 75 into 4/5 minus gt. This is the velocity vector after 3 seconds. ठीक है, देख लो. तो is equal to 45 I cap plus ये आ जाएगा 60 minus 30, तो plus 30 j cap. तो आंसर कितना आ जाएगा फिर? tan inverse of 30/45. So therefore you have theta is equal to tan inverse of 30/45, which is 2/3. That is equal to tan inverse of so theta in this case will become equal to tan inverse of 2/3. That's the answer to the first question. मैंने करेक्ट दिया है, ऐसे बात नहीं. चलो, so that's about first one. Second one. Second question में देखो क्या है. Second question बोल रहा है V2 बताओ और S2 बताओ. I think that is the easiest one. So V2, this will be the same 45 I cap plus अभी हमने वेलोसिटी आफ्टर 3 निकाला, तो इसमें 10 into 3 की जगह 10 into 2 कर दूंगा, यानी 60 minus 40 हो जाएगा, 60 minus 20 हो जाएगा, तो यानी 40 आएगी. So that's velocity after 2 seconds. Okay, रोहानी, मुकुंद, एक और आंसर भी आए हैं. 40 j cap होगा. ठीक है, ठीक है ना. Shikhar has also given answer 4/5, 4/9, etc. चलो ठीक है, एक मिनट रुकता. इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट. तो S2, S2 में क्या होगा? ut plus half at square वाला टाइप का, तो लाइक वो ये वाला u cos theta which is 45 into 2 I cap plus u sin theta into t which is 60 into t minus half g t square j cap. ठीक है, so that will be equal to 45 into 2 is 90 I cap
plus 120 minus 20, so that's 100. ठीक है, तो एक हो गया 45 आई कैप प्लस 40 जे कैप, और दूसरा हो गया 90 आई कैप प्लस 100 जे कैप। ठीक है, 90 आई कैप प्लस 100 जे कैप बहुत लोगों के आए हैं। It's really difficult to read out all the names, but I think it was done properly. तो बहुत लोग के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, that's done. So V2 भी आ गया, S2 भी आ गया। अब आ रहा angle of elevation of projectile after 4 seconds. Now, first of all, what do you exactly mean by angle of elevation? Now, it's actually a concept which you have read in class, I think 9th, 10th in trigonometry. So let me ask this question to somebody. Saurabh Mishra, can I have you on here, bete? Saurabh Mishra. Yes, sir. Can you tell me what do you mean by angle of elevation? So angle of elevation is basically an angle which is between light of vision and normal. एक मिनट में बहुत जल्दी बता दिया तुमने। Sir, angle of elevation is basically an angle which is basically between which basically between light of vision and normal. Okay, between normal. No, रुको। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, Yes, sir. और मैं The यहाँ से angle देख, made by the observer's eyes to see the object. हाँ तो अभी पता है नॉर्मल बोलते ये माना जाता है, और ये एंगल, ये लाइन ज्वाइनिंग, तो इज दिस द एंगल ऑफ एलिवेशन यू आर सेइंग बेटे? No, sir. No, sir. तो नॉर्मल तो यही होता है ना बेटे? Sir, normal through y-axis. अब ये तो फिर बताना पड़ेगा ना। अगर मान लो तुम बोलोगे कि ग्राउंड के ऊपर एक नॉर्मल बनाओ, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, है ना? अच्छा, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ऐसे ना बोल के, वोंट इट बी बेटर कि मैं उसको हॉरिजॉन्टल बोल दूं? Yes, sir. है ना? तो therefore what is the angle of elevation? Angle of elevation is the angle at which we have to see. मतलब क्या कि जैसे मान लो कोई चीज है जो कि मेरे आई के लेवल पे है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? 0। बट मान लो वो थोड़ा ऊपर है, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे थोड़ा सा गर्दन ऐसे करना पड़ेगा ना। अगर कोई लेवल पे नहीं है, मान लो थोड़ा ऊपर है, तो मुझे फिर थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। तो वो जो एंगल बनाना पड़ता है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है थोड़ा सा, इन दैट केस मुझे गर्दन को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, यानी ऐसे ना करके थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो दैट वुड बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन इज प्योरली बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर को ऐसे देखना पड़ रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर को ऐसे देखना पड़ रहा है, इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट दोनों ही हॉरिजॉन्टल लेवल से कैलकुलेट किया जाता है, यानी दोनों ही हॉरिजॉन्टल लेवल से देखा जाता है। ठीक है, इज दैट ओके? देख लो, तो इन दिस केस ये प्रोजेक्टाइल मान लो 4 सेकंड बाद इधर से ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे भी होगा, आई डोंट नो वेयर इट इज, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे। तो व्हाट यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन इज बेसिकली दिस वन। यानी सबसे पहले देखो, मुझे ये डिसाइड करना था कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी वेक्टर यूज करना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना? Who will give the answer? Let me point out somebody. Prasuk, bete, can I have you on air? Prasuk? Yes, sir. Okay, Prasuk, can you tell me ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको मुझे निकालने के लिए वेलोसिटी वेक्टर यूज करना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? Displacement vector. That's right. यानी इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 4 सेकेंड्स के बाद इस वेक्टर का, यानी इस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। ठीक है ना? सो नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड्स, यानी S4। ठीक है, ये तो हो चुका है। सो आवर टास्क इज टू फाइंड आउट S4। ठीक है, तो S4 क्या हो जाएगा? वही सेम u cos थीटा इनटू t, है ना?
तो 60 into 4 I cap plus u sin theta, याद आ रहा है? Sir, 45 into 4. Sorry, 45 into, है ना, 45 into 4 plus 60 into 4 minus half into 10 into 4 का square, है ना जी. I hope that's okay. So is equal to 180 I cap plus 240 minus 80 यानी 160 J. ठीक है, देख लो अच्छे से. ओके, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था प्रसूप को, आई थिंक देयर वर सम आंसर्स करेक्टली गिवन विद given by others also. Rohani had given earlier the answer for elevation. Pritika also, Aditya and Priyanka has now given an answer to this particular question as well. चलो ठीक है, it's all right. I mean, कई बार इतने सारे नाम पढ़ के सुनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, but keep on participating so that even I also come to know what exactly you're thinking. ठीक है ना? चलो, तो like displacement after 4 seconds आ गया 180 I cap plus 160 J cap. Therefore, the angle of elevation क्या होगा? As I said, tan inverse y by x. So it will be angle of elevation जिन्हें हम लोग alpha से represent करते हैं. It's a standard notation. ठीक है ना? तो alpha हो गया equal to tan inverse of 160 by 180. यानी tan inverse of 8 by 9. That's right. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट. So that's how we can easily find out in this particular question the angle of, वेलोसिटी से भी तो कर सकते हैं. हाँ बेटे, वेलोसिटी से भी कर सकते हैं. नहीं, वेलोसिटी वेक्टर बेटे अलग हो जाता है. वेलोसिटी वेक्टर होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वो अलग हो जाता है. और जो मैंने पूछा है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से निकलेगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल या एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वो हमेशा निकलेगा वेलोसिटी वेक्टर से. ये थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है बेटे. Okay. So those were some of the aspects that we wanted to study at a preliminary level in this particular question. Now let's move on to the next utilities of projectile. In the meanwhile, there seems to be a question from Aditya Bhatia, and that is, अगर हम इसे extend कर दे तो वो angle of projectile के equal नहीं होगा. Angle of projectile motion नहीं बेटा equal नहीं होगा. मैं बताता हूँ क्यों. पहली बात तो देखो, मान लो प्रोजेक्टाइल ऐसे है, लेट्स से, तो अभी इस वक्त वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये है. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन तो इस वेक्टर के हिसाब से आएगा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन तो इस वेक्टर से है. तो एक्सटेंड भी कर दो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. दोनों के अलग अलग एंगल्स होंगे, है ना. ये हो गया VT वेक्टर और ये हो गया ST वेक्टर. तो देखो इसका एंगल अलग है और इसका एंगल अलग, तो देखिए पता चल रहा है. तो जस्ट बिकॉज आई हैव एक्सटेंडेड इट डज नॉट मीन कि दोनों के एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे. नो, इट वोंट हैपन. ठीक है ना. तो इसलिए वेलोसिटी वेक्टर अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग चीज है, और दोनों के एंगल्स अलग अलग होंगे. तो देयरफॉर यू कैन नॉट जस्ट मैच द एंगल्स बाय जस्ट एक्सटेंडिंग एनी ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है ना. चलो, तो लेट्स मूव ऑन नाउ. You will get displacement vector to the conclusion. Let me now write few more things. Number one is that if you look at the projectile motion, I can look at it from various perspectives. Let me now look at the highest point. Okay, highest point. Now, are you asking something? No sir. Okay. हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो दो वेक्टर्स है,
ये जो दो वेक्टर्स है, वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था मैंने मिटा दिया बिकॉज़ नाउ यू मस्ट हैव गॉट इट इंटरनलाइज्ड एंड मेमोराइज्ड। मुझे इनके बारे में कुछ बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे VT वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कुछ खासियत बताओ। तो समथिंग व्हिच कैन बी एन इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ एट द हाईएस्ट पॉइंट। Nikunj, can you give me an answer, bete? Nikunj, can I have you on air? Nikunj. Nikunj, can I have you on air, bete? Acha, mic is not working. चलो ठीक है. But in spite of that, Nikunj, I'm asking you the question is that हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर का कोई स्पेशलिटी बताओ. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर का कोई स्पेशलिटी बताओ. हाईएस्ट पॉइंट. Okay, now several ideas have come up. Let me read out some of them. Some of them are quite interesting also. And that is okay. Arav has given no velocity in y. Aditya says VT vector 0 होगा. No. देखो ये दोनों में फर्क हो जाता है. VT वेक्टर का मतलब 0 होने का मतलब समझो बॉडी स्टेशनरी होना. इस पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ में बॉडी कहीं पे भी स्टेशनरी नहीं होगा. Not at the highest point also. Highest point will be stationary नहीं होगा, ध्यान रखो. So don't say कि VT vector will become 0. तो ठीक है. Hitarth has given कि V will be parallel to x-axis. Not bad. Aryan has said particle will have only horizontal velocity. Niyank says theta 0 हो जाएगा sir. Top point पर theta means angle of projectile motion, है ना? That is what you meant probably. Saurav says highest point पे Vy 0 हो जाएगा. Anubhav says कि perpendicular to acceleration हो जाएगा. Okay, that's an interesting answer and that is correct also. Vaishnavi says y component of velocity is 0. Okay, that's right, Vaishnavi. Arnav says vertical component is 0. That's right. Kritika says only exists in horizontal direction in vertical 0. Vy 0. Saurav, Palak, Bhumija, Mukund, Adyasha, Shaurya. I think now everybody is giving the same answer. Rose, Nikunj, Manya, Shikhar, Arav, Aditya, Hitarth. Oh, a lot of answers. Good. Hardik, Arav. Okay, now another interesting answer has come, and that is from Priyam, and that is displacement along x will be half that of the total. Okay. Priyank has also given another interesting answer, that is displacement along y will be highest. यानी ये y वाला जो displacement है ये highest हो. और that is also not a bad answer. These are also good answers. But हम लोग immediately जो use करने वाले हैं, Arav has been given the center of curvature or the radius of curvature also. खैर इतना detail में मैं नहीं जा रहा हूँ. Priyanka has also given कि displacement will be half the total. चलो good. Basically क्या है कि अगर मैं देखता हूँ इस projectile का motion ऐसे, यानी इसका एक x component है, एक y component है, क्योंकि y component यानी ऊपर भी ले जाए, तो y component देखो घटता जा रहा है, और इस पॉइंट पे आके y component खत्म हो जाता है, और उसके बाद y component नेगेटिव होने लगता है, इसलिए पार्टिकल नीचे आ रहा है, because of continuous acceleration downwards, यानी नेगेटिव. तो therefore बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया गया, and that is highest point पे हम Vy को 0 पुट करेंगे. तो at highest point Vy will be 0. That means u sin theta minus gt is equal to 0. यानी t हो गया equal to u sin theta by g. यानी हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने का जो टाइम है वो हमने निकाल लिया. कितना आ गया? u sin theta by g. फाइन. देखिए ये टाइम आ गया. अब एक बार टाइम आ जाता है तो we can find out many other things. For example, what is meant by the y coordinate? Isn't it the height of the projectile? तो इससे क्या होगा? Y is the h max. इस पॉइंट पे
या इस टाइम पे जो y कोऑर्डिनेट है वही मैक्सिमम हाइट होगा। तो therefore h max is equal to u sin theta into t minus half g t square, यानी u sin theta, ये होता है y कोऑर्डिनेट, है ना, u sin theta into t minus half gt square, हमने t की जगह पुट कर लिया, यानी इक्वल टू u square sin square theta by g minus u square sin square theta by 2g। तो क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करके u square sin square theta by 2g। So we have found out the velocity at the maximum height. Just have a look. Sorry, the maximum height itself. And we have used the fact that the velocity at the maximum height is horizontal and no y component. तो ये हो गया h max. चलो ठीक, that's the first thing that we have found out with the help of a projectile. Dhruv has asked, can we say that Vt at highest point is minimum? You know what, you are right. At the highest point velocity minimum होगा, क्यों? क्योंकि बाकी हर जगह पे x component of velocity तो उतना ही रहता है और साथ में कुछ y भी रहता है, y component of velocity अभी, और highest point पे क्या होगा, y component of velocity नहीं रहता, यानी अकेला x component, और वो x component तो हर जगह same है। So therefore at the highest point the velocity also will be minimum, that is the magnitude will be minimum, that is also a correct assessment। यानी highest point क्या, हम कई सारे features हम जानते हैं, ठीक है ना। चलो, so therefore we found the maximum height। Now let's look at the next point of interest, and that is the landing point। ये point, ठीक है। तो let's look at what do we exactly know about the landing point, है ना। So can we have somebody else on air? I mean, Shikhar, can you hear me, bete? Shikhar, bete? Yes, sir. Yes, sir. तुम बताओ बेटे शिखर कि ये जो लैंडिंग पॉइंट है इसके बारे में ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन जो कि मुझे आगे कुछ चीजें निकालने में हेल्प करें। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द लैंडिंग पॉइंट? व्हाट डू यू नो अबाउट द लैंडिंग पॉइंट इज द क्वेश्चन। यस बेटे। सर इसका तो देखो मैं ना बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा। मैं बोला बताओ कि तुमको इसके बारे में क्या पता चल रहा है, लैंडिंग पॉइंट में ऐसे क्या खासियत है जिसको यूज करके मैं फर्दर कुछ क्वांटिटीज, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसका खासियत ये था कि इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 था क्योंकि सिर्फ अकेला x था, तो उससे मैंने टाइम निकाला और टाइम के बाद हमने उसका मैक्सिमम हाइट निकाला। तो ऐसे ही कुछ प्लानिंग मुझे इस पॉइंट के बारे में भी कर रहा हूँ, ऐसे कुछ प्लानिंग में इस पॉइंट के बारे में भी कर रहा हूँ, पर उसके लिए मुझे कुछ चीजें पता तो होना चाहिए ना, और वो जब पता होगा उसके बेसिस फिर मैं फर्दर और कुछ चीजें निकालूंगा। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट। हाँ बेटा बोलो। Okay, Hitarth has given some answers. नहीं, answers तो खैर एक दो जने और भी दे रहे हैं। Hitarth has given कि maybe magnitude of v vector will be equal to magnitude of v vector at origin starting point. यानी what Hitarth is saying is that कि यहाँ का velocity vector का magnitude और वहाँ का velocity vector का magnitude दोनों बराबर होगा। Interestingly, Hitarth, you are right, but then उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। But then what you are saying is right. Saurav says कि vx equal to 0 ना, vx equal to 0 क्यों बोल रहे हो? vx तो horizontal velocity है और horizontal velocity में कोई acceleration तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए horizontal velocity will remain intact, उसका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। That's the second thing. Third thing is Aditya has said horizontal displacement। नहीं तो बताओ ना horizontal displacement क्या है? Okay, Rose has now given an interesting answer, and that is displacement in y direction 0. Aditya says कि time taken to reach is 2t, कि यहाँ तक का t था, फिर वापसी आने का t, तो therefore वहाँ का time को 2t लिखा है। Well, you may or may not accept it so easy, 2t वाला fact,
I might accept, I might as well not accept. क्यों? क्योंकि तुमने इसको अंदाजे से बताया, वो अलग बात है, वो सही है, बट देन कोई मैथमेटिकल तरीके से बताना होता है, दैट इज द पॉइंट. Hitat also says कि उसका angle of elevation 0 होगा. Okay, not bad. This is definitely a point to be taken. I mean, Hardik has said कि y component will be downwards. Okay, Hardik, then you have to be a little specific. Hardik, पता तुमको क्या बोलना पड़ेगा कि velocity का y component downwards. तो यहाँ पे दो वेक्टर डिस्कस हो रहा है, velocity vector और displacement vector. Displacement vector वहाँ पे downwards नहीं. Displacement vector in fact horizontal. Downwards है ही नहीं. डाउनवर्ड्स होगा थोड़ी देर बाद. अगर मान लो प्रोजेक्टाइल को और नीचे जाने दो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा थोड़ी देर बाद. अगर जाने दो तो, अगर मान लो ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ टकरा जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो. बट लेट्स से मान लो यहाँ पे कुछ जगह है और वो नीचे जा सकता है, तो तब जाके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाउनवर्ड्स होगा. उसके पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा अपवर्ड्स ही था. Kritika says कि horizontal displacement from highest point to landing point is equal to horizontal displacement from starting point to landing point. Sir, I corrected that. Actually, it will be twice कहना चाह रहे. हाँ देखो ये असेसमेंट गलत नहीं है, बट देन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इन द सेंस कि इसको यूज कैसे करेंगे, दैट्स द पॉइंट. Angle of elevation 0 is a correct answer, no doubt. RO is given that the angle of the final velocity vector with horizontal is equal to plus theta. Okay, I would not agree with that. अगर इसको प्लस थीटा मान रहे हो तो वहां पे एंगल फिर माइनस थीटा मानना. So therefore it's not plus theta, minus theta. Saurav is a very long statement. अगर हम पूरे मोशन में y डायरेक्शन में इक्वेशन लाइक y square to 0 होगी, y डायरेक्शन में पार्टिकल 0 ट्रैवल करके वो. So a lot of things have been said by Saurav. RO is given the angle of velocity vector will be equal to theta. Displacement on y will be 0. सर मैंने तो यही भेजा था. बिल्कुल सही लिखा भेजा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है. Hardik says I meant velocity. Arnav says distance from origin is equal to उसका sin का theta by g. चलो ठीक है, that's okay. हमें Aiza says y component of displacement vector is 0. Okay, चलो ठीक है. देखो ये जो पॉइंट है ना, इसमें 4-5 आंसर सही थे. It's very difficult to read out the names right now, but yes, some of them are correct. What was that? And that is इस पॉइंट का, ठीक है ना, sy यानी displacement along y axis equal to 0. यानी डिस्प्लेसमेंट का j का कंपोनेंट को मुझे इक्वेट करना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट याद करो तो दो कंपोनेंट थे, एक i और एक j. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, यानी वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट को 0 करना पड़ेगा. यू आर राइट. और वर्टिकल वाला कंपोनेंट 0 का मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होता है, u sin theta into t minus half gt square, that will be equal to 0. तो therefore इससे क्या होगा ना, t आ गया 2u sin theta by g. देखिए, so the time taken will be equal to 2u sin theta by g. So that means some of the things said by some of you actually have turned out to be correct. क्या कि यहां से यहां तक का पहुंचने का टाइम, और अगर मैं यहां से यहां तक का पहुंचने का टाइम देखता हूं तो 1:2 आए. कैसे? तो इसके पहले भी तो हमने टाइम निकाला, टाइम तो आया ना u sin theta by g, और अब क्या आ गया 2u sin theta by g. So therefore the time taken to reach the ground या same level is this. So this is the time taken to reach same level. ठीक है? There is a time taken to reach the same horizontal level. Fine? चलो ठीक है. तो वो आ गया t is equal to 2u sin theta by g. अब देखो उतने टाइम पे जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, that will be called as the horizontal range, and that is nothing but what? The x coordinate. तो ये हो गया x coordinate को हम लोग बोलते हैं horizontal range. तो r is called horizontal range. And what is exactly r? That is equal to x coordinate of landing point.
और x कोऑर्डिनेट होता कितना है, हमने ऑलरेडी वेक्टर इक्वेशन से स्टडी कर रखा है, क्या है u cos theta into t. So therefore horizontal range r is equal to x component, that is u cos theta, into time क्या है 2u sin theta by g, तो into 2u sin theta by g, यानी 2u square sin theta cos theta by g. देखो, so this is the horizontal range and that is equal to 2u square sin theta cos theta by g. ठीक है, and some of you must be aware कि sin 2 theta होता है 2 sin theta cos theta. तो कई बार इसलिए क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 sin theta cos theta दिखता है, तो कई बार इसको इसलिए सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है as equal to u square sin 2 theta by g. ठीक है, तो रेंज के फॉर्मूले आ गए, दो फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, एक ही फॉर्मूला, बट देन यू कैन राइट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. 2u square sin theta cos theta by g, that's one form, and the other is u square sin 2 theta by g, that is the second form. ठीक है, देख लो. Okay, I hope that's right, Ami. All right. Okay, I think that's what we will have time for as far as today is concerned. But I think we are in the middle of a good discussion. तो हम लोग इस डिस्कशन को अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर हमने जस्ट अभी स्टार्टिंग किया है, अभी तो काफी कुछ है प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने लायक. Those are things that we are going to discuss in tomorrow's classes. Fine. So like tomorrow we are going to continue with projectile motion in more details. Fine. चलो, that's it for today then. हाँ बेटे. सर मतलब लैंडिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो चलता रहेगा मतलब? देखो, I don't know. See, it all depends on situation. अगर मान लो ग्राउंड होगा तो लैंडिंग के बाद क्या होगा, नो वन knows. क्यों, बाउंस भी कर सकता है. और अगर मान लो कोई सैंड सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही रहेगा ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स वेक्टर ही है बस. देखो, लैंडिंग के बाद क्या होगा, that will not impact the discussion that we have done till. हमने क्या डिस्कशन किया कि वो लैंड कहाँ पे करेंगे, तो that will not be changing because of landing parameter. Landing parameter मतलब हो सकता है वहां बाउंस करे, हो सकता है वहीं पे रुक जाए, हो सकता है किसने उसको पकड़ लिया उस जगह पे, कैच पकड़ लिया, टाइप ऑफ थिंग. हमें जैसे कोई बैट्समैन ने हिट किया और उसको कैच के फॉर्म में पकड़ लिया, तो therefore लैंडिंग के बाद क्या होगा, we don't know, so therefore I'm not going to the speculation. I'm only saying, in fact ये हो सकता है लैंड नहीं करे. क्यों, हो सकता है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है तो ये लैंड नहीं करेगा, और नीचे जाएंगे. So this is not the landing point, this is just a point. Which point? At the same level as throwing, and so on. देखो, इसके ऊपर कई सारे डिस्कशंस हैं आज, which we will do. I mean, but whatever it is, चाहे कुछ भी हो, जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई चेंज नहीं होगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, रेंज कितना होगा, that will not change. ठीक है ना. बट हाँ, इसके बाद क्या होगा, that will definitely be impacted because of various possibilities that is there at the landing point. हो सकता है बाउंस करे, हो सकता है वहीं रुक जाए, है ना, हो सकता है कि और नीचे चला जाए. There are several possibilities which we don't know. Fine. But anyway, those are things that we're going to continue discussing. Don't worry, for tomorrow and day after as well. Fine. चलो, आज के लिए इतना ही फिर. We'll carry on tomorrow. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Have a good day.